پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب. ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر منتخب ہو گئیں اور علی امین گنڈاپور تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے. عمر ایوب پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکریٹری منتخب. تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی نے باضابطہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے. وہ کینڈیڈیٹ جو پروونشل ہیں اور سینٹر کے وہ اناؤنس کرنے لگا ہوں جو مجھے آر او نے لسٹ دی جس کے مطابق 1 پینل الیکشن ہوا. کوئی آرگنائزیشن اور پینل سامنے نہیں آیا. بلوچستان میں پریزیڈنٹ ہے منیر احمد بلوچ اینڈ ہز پینل. سندھ کے لیے حلیم عادل شیخ اینڈ ہز پینل. کے پی کے لیے علی امین خان گنڈاپور اینڈ ہز پینل. اور پنجاب کے لیے ہے یاسمین راشد اینڈ ہر پینل. سینٹر کے لیے سیکرٹری جنرل کے لیے عمر ایوب خان اور سینٹر چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان. اس پر مزید بات کرنے کے لیے بات کریں گے یاسر علی سے. جی یاسر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا، امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. جی بالکل، تمام امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کے جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی، وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے لیے یاسمین راشدہ وہ پنجاب کی صدر منتخب ہوئے ہیں. سندھ کے لیے حلیم عادل شیخ، خیبر پختونخوا کے امین گنڈاپور، جبکہ پنجاب کے منیر احمد بلوچ. یہ چاروں صوبوں کے صدور بھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، جبکہ مرکزی جنرل سیکرٹری جو عمر ایوب ہی ہوں گے. تو تمام امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اب یہ اپنے پینلز کا باقاعدہ اعلان کریں گے. جو چیف الیکشن کمشنر تھے نیاز اللہ نیازی، ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ جو ووٹر ان کے تقریباً ووٹر لسٹ کی تعداد 65 لاکھ کے قریب ان کے ووٹر لسٹ تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ایپ بنائی تھی جس کے ذریعے تمام جو جتنے بھی ووٹرز تھے وہ اپنا ووٹ ڈالتے. تاہم چونکہ کسی دوسری پارٹی یا کسی دوسرے پینل کا اعلان نہیں ہوا تھا، صرف ایک ہی پینل تھا، تو اس لیے ان کو تمام امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل جو پی ٹی آئی کے نئے منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے. انہوں نے باقاعدہ یہاں پر پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور تمام امیدواروں کا وہ اعلان کریں گے. اور ان کا الیکشن جو مہم ہے وہ شروع رہیں گے. یہ پارٹی کا جو چیئرمین نے ان پر اعتماد کیا ہے، وہ کوشش کریں گے کہ ان کے اعتماد پر پورا اتریں. اور ان کے پاس یہ جو عہدہ ہے چیئرمین کا، یہ ان کے پاس عمران خان کی امانت ہے. جی یاسر علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. انتہائی اہم منصب سونپنے پر پارٹی کا شکر گزار ہوں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سربراہ پی ٹی آئی چیئرمین تھے اور ہمیشہ رہیں گے. جو پارٹی سربراہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہمارا ہوتا ہے. جیسے ہمارا الیکشن ہوا ایسا کسی جماعت کا نہیں ہوا. فارن فنڈنگ صرف پی ٹی آئی کی دیکھی گئی، دیگر جماعتوں کی بھی دیکھی جائے. مزید انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے. سب سے پہلے میں اس نہایت اہم منصب کی ذمہ داری سونپنے پہ خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہ انفوز منتخب ہونا، کل ایک پینل کا فقط آنا، الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. 1960 سے پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں. 1960 سے لے کے آج تک 175 پارٹی میں سے کسی کی الیکشن کو ایسا نہیں دیکھا گیا جس طریقے سے ہمارا الیکشن دیکھا گیا. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود کہ فارن فنڈنگ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے، صرف پی ٹی آئی کا دیکھا گیا. تاریخ کے پہلے الیکشن ہیں جن میں ووٹرز نہیں ہیں. تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر بابر کا رد عمل، کہتے ہیں ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر یہ کیسے الیکشن ہے اور الیکشن کیسے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے. تاریخ کے پہلے الیکشن ہیں جن میں ووٹرز نہیں ہیں. تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر بابر کا رد عمل، کہتے ہیں ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ اکبر بابر جو ہے انہوں نے شکوہ کر دیا.
तो उधर नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू हो गए। नून लीगी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बाद टिकट जारी होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास शुरू हो चुका। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक हैं। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल हैं। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात भी करेंगे। कायद नून लीग इंटरव्यू के बाद टिकट के इजरा का फैसला भी करेंगे। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू हो चुके। नून लीगी उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के बाद टिकट जारी होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी इसमें शरीक हैं। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल हैं। पीआईए का तैयारा हादसे से बच गया। कप्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़राए के मुताबिक बोइंग 777 तैयारे ने कराची से मदीना के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद तैयारे के इंजन से चिंगारी निकलना शुरू हो गई। तैयारे का एक इंजन बंद हो गया था। कप्तान का हाजिर दिमागी का मुजाहरा और फायर बोतल के जरिए तैयारे के इंजन में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि पीआईए का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कप्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़राए के मुताबिक बोइंग 777 तैयारे ने कराची से मदीने के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद तैयारे के इंजन से चिंगारी निकलना शुरू हो गई। इस पर बात करेंगे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा सारे हादसे के हवाले से सब खैर आफियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर ऑफिस से तैयारा वापस उतर गया। ये कराची से जा रहा था मदीना और इस फ्लाइट ने जब उड़ान भरी है तो उसके बाद इसके एक इंजन में जो है वो कैप्टन को लगा, जो उसको कॉकपिट के अंदर जो है उसकी वो वार्निंग भी आई कि इंजन में फायर हुआ है। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है कैप्टन ने फायर बोतल जो है वो उसको अप्लाई किया ताकि आग बुझ जाए। और इस दौरान जो एक इंजन जो ज़राए बता रहे हैं कि वो बंद हुआ और उसके बाद एक इमरजेंसी की सूरत हाल बहरहाल डिक्लेयर हुई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके बाद तैयारे को उतार लिया गया। 276 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे और तैयारे की लैंडिंग के फौरन बाद जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो जो एसओपी एक होती है उसको फॉलो करने के लिए पहुंची और तैयारा जो है वापस कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और मुसाफिरों को जो है वो होटल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब ये तैयारा जो है मदीना के लिए कराची से या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना के लिए शाम 5 बजे जो मुतबादिल परवाज के जरिए रवाना की जाएगी। जी सही आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाले का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर में जारी फील्ड मशक का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, कहिएगा, आर्मी चीफ ने खैरपुर टामे वाले का दौरा किया है, क्या कहा गया उनकी जानिब से इस मौके पर? जी देखें जी, आज आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर में जो जारी फील्ड मशक है उसका मुआयना किया है और ये मशकें जो है ये खैरपुर टामी वाला में इस वक्त जारी हैं। और इस मौका पर उन्होंने एयर डिफेंस और जो फ़ज़ाई डिफेंस है उसका भी मुआयना किया और पाकिस्तान आर्मी की जो सलाहियत है, जो तरबियत है, उसके मियार को भी सराहा। साथ आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि इन मशकों का मकसद जो है ऑपरेशनल तैयारियां जो है उस वक्त हर वक्त तैयार रहना है। और इसमें जो फील्ड ऑपरेशन है उसका भी जायजा लिया गया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जो हैवी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर और दीगर जो आर्मी के हथियार हैं उनका मुआयना भी किया गया और उसका मुजाहरा भी किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो भी पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, चैलेंजेस है, उससे निपटा जाएगा और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को जो है वो इबरतनाक अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मुकम्मल महफूज है और पाकिस्तान की दफाई सलाहियत जो है वो हर किस्म के जो दुश्मन हैं उनके जो मजमूम मकासद हैं उनको नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा उन्होंने जो अफसरान हैं वहाँ उनसे भी मुलाकात की और फौजी जो जवान थे उनसे भी मुलाकात की और इस मौका पर उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई इन मशकों के हवाले से। जी खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साइफर केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज ने केस सुना। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया।
4 दिसंबर को मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान है। बुशरा बीबी समाअत के दौरान मौजूद रही। अदालत 4 हफ्तों में ट्रायल का इंदिया दे चुकी। साइफर केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अटियाला चेयरमैन खसूसी अदालत के जज ने ये केस सुना। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया और 4 दिसंबर को मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान भी है। गुजरात ठेकों में किक बैक्स की तहकीकात मुकम्मल। परवेज इलाही और मुनिस इलाही मरकजी मुल्जिम नामजद। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम्स मंजूर कराई गई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम भी आयद किया गया। मुनिस इलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजिमीन वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। आहत चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समाअत। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत 8 दिसंबर को महफूज फैसला सुनाएगी। नैब की जानिब से वारिस अली जंजू एडवोकेट ने दलाइल दिए। आहत चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समाअत। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरियत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। ना वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। इलेक्शन प्रोसेस नामालूम और खुफिया मुकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनंदा था ना तायद कुनंदा। प्रेस रिलीज 1.5 घंटे तक रोककर अवाम इलेक्शन कमीशन और अपने पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 329 बिजली चोर पकड़े गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 कमर्शियल, 4 ज़रई और 319 डोमेस्टिक थे। इस पर बात करेंगे आमिर नवी चौधरी से। जी आमिर, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 329 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें 206 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 कमर्शियल, 4 ज़रई और 319 जो हैं डोमेस्टिक कनेक्शन शामिल थे। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां शादरा टाउनशिप और दीगर इलाकों में की गई। सनत नगर, इस्लामपुरा में भी बिजली चोर पकड़े गए। इस तरह शाद बाग में भी कार्रवाई की गई है। यूसुफ पार्क में भी कार्रवाई की गई है। एससी सेकंड सर्कल गुलाम शबीर की हदायत पर टाउनशिप और दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई। इस हवाले से लेस्को हुकाम का ये कहना है कि बिजली चोरों के खात्मे तक मुकम्मल तौर पर जो है ऑपरेशन जारी रहेगा और लेस्को की टीमें हफ्ते और इतवार के दिन भी जो है ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। इस हवाले से जी सही, हफ्ते को और इतवार को भी लेस्को की टीमें एक्टिव हैं। आमिर, शुक्रिया। पीएसएल में खिलाड़ी तोड़ने के लिए बराह रास्त पैसे देने की पेशकश का इंकशाफ। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना का कहना है, किसी फ्रेंचाइज का बराह रास्त खिलाड़ी से राब्ता ज्यादती है। उन्होंने कहा, पीएसएल फ्रेंचाइजीज को एक फैमिली की तरह बरकरार रखना होगा। रिश्वत के कल्चर के फरोग को रोकना होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.bk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।